Hello, all. This is Pallavi, your host for this Sunday special evening with your Dream Tale. So, today is Father's Day. So, wishing you all a very happy Father's Day to all the amazing father out here in this world. So, thank you so much for all the contribution, support, care, love, and raising us, which we can never pay back. So let's start the session. I'm here to call our guest, who is so special and make you laugh like anything through his style, and we'll have chit chat on this Father's Day. Let me give brief about this person. As they say, an IAS officer comes from every third house in Bihar. Well, if that's true, then he certainly never lived in a house that's multiple of three, but he is doing a better incorruptible service nonetheless. Yes, he is making people laugh with his jokes. He has his own comic timing and style, which comes with a slight fun flavor of Bihari accent and anecdotes of his attempts to gel into so-called cool urban high class society. True to his roots, his jokes will make you appreciate the simplicity and authenticity of our humble existence. Let me give some idea about his journey. He started this stand-up comedy journey in February 2016. He performed at various renowned venues like Canvas Laugh Club, Gurgaon, Mumbai, Pune Comedy Festival, Classic Rock Cafe, also TEDx in Hinjewadi. He shortlisted and performed in the final audition round for Comic Stand Season 1 on Prime. And also, he has opened for various renowned comedians like Zakir Khan, Papa CJ, Vipul Goyal, Amit Tandon, Nishant Tanwar, Atul Khatri, Bishwa Kalyan Rath, Saurabh Pant, Adar Malik, Rajneesh Kapoor, Binay Kapoor, Jaspreet Singh, Gaurav Kapoor, Gaurav Gupta, and so many like this. He owned his YouTube channel with 25,000 subscribers and 3.2 million views. He has acted in number of street plays and drama and improved rounds of stage comedy. He is none other than Akash Gaurav Singh. So let's welcome him and we'll listen something special, interesting from him. So I'll not waste much time. I'll invite him now. हेलो। Yeah, hi Akash. Good evening. तो कैसे चल आवाज रहा आ है? रही है? सब बढ़िया। हाँ, हाँ, क्या पूछे? मैंने कहा सब लॉकडाउन में सेफ हेल्दी सब चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। घर में ही है, सब काम घर में से हो जाता है। आप हम्म, बताओ? बस चल रहा है जिंदगी। ये अनएक्सपेक्टेड लाइफ 2020 का, जिससे हमारा कोई बस नहीं है। अच्छा, 2020 में ऐसे चीजें, बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग वाला आ रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम्म, करेक्ट। सो तो आकाश, लाइक आपका जर्नी अब तक कैसा रहा? लाइक आप प्रोफेशनल, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, विद दैट की प्रोफेशनल कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, तो कैसा रहा आपका जर्नी? तो थोड़ा सा बताना चाहोगे? यार जर्नी ऐसे ही बहुत बोरिंग वर्ड लगता है, क्योंकि जर्नी हमको ज्यादा पसंद नहीं है। लाइफ अच्छा रहा वैसे। तो अपन लोग मिडिल क्लास के लोग जर्नी करते थे ट्रेन से पुणे पटना, बड़ा गंदा अच्छा। था। तो इसलिए जर्नी का याद आते ही लाइफ अच्छा नहीं लगता। तो लाइफ तो वैसे अच्छा चल रहा है, और जॉब है और स्टैंड अप है, ठीक है। दो नाव को पैर रख के चल रहे हैं। बस दोनों नाव को करीब रखते हैं, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बस चल रहा अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक बात, लाइक आज आज फादर्स डे है, सो हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल। हुए नहीं हो, बट हो जाओगे फ्यूचर में। तो है। नहीं नहीं। ये जानना चाहेंगे कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो आपका लाइक पापा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस मतलब करियर में आपका? यार पापा, मतलब इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया में जैसा कल्चर चल रहा है, उसमें कभी भी पापा का पैशन, जो बच्चे के पैशन के साथ कभी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इशारा होता है।
क्योंकि अपने इंडिया की जो हालत है, कभी भी बाप दिल खोल के नहीं बोल सकता बेटा जी ले अपनी जिंदगी, अपने पैशन को जी ले, क्योंकि हालत ऐसी है अपने इंडिया की, है ना। तो पैशन का जो भी एक स्लाइटली उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो अलग अलग माध्यम से तरीके से दिखता है, और वो बड़ा ही अच्छा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनका ऐसा था कि बेटा जॉब कर लो, जॉब जॉब जब मैंने कर लिया और जॉब के साथ जब मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी, बिकॉज फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, उसमें जरूरी है कि पहले आप अपनी जिंदगी को सिक्योर करें, साथ में जो करना है कर लें। वो हर बाप यही कहता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड यहाँ पे हर चीज को एक्सपोजर नहीं है, और कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा की फैशन के नाम पे बेचारा हर एक नवाजुद्दीन नहीं बन सकता। तो इसीलिए तो उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है कि हमेशा से वो यही बोले हैं कि सेफ खेलो बेटा, प्ले सेफ, बिकॉज वी आर द मिडिल क्लास फैमिली, एंड मिडिल क्लास फैमिली को सेफ खेलना बहुत जरूरी है। सेफ खेलोगे तो हेल्दी रहने के लिए पैसा इकट्ठा कर पाओगे। एग्जैक्टली तो उनका एडवाइस, उनका जो सजेशन है बहुत काम आता है हमारा लाइफ को अच्छे से अच्छे वे में आगे लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। और मेरा जो प्रोफेशन है स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें जनरली शोज रात में होते हैं, तो दिन में जॉब हो जाता है, रात में शोज हो जाते हैं, और जो जोक्स हैं उसके लिए चाहिए किरदार, फनी फनी किरदार, तो वो सारे किरदार हमें अपनी कंपनीज में मिल जाते हैं। तो इसके क्या चक्कर में जो ऑफिस है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल होता है, और जो स्टैंड अप है वो मेरे लिए शोरूम होता है। तो एग्जैक्टली हाँ, मैं देखती हूँ कभी कभी, लाइक बहुत अमेजिंग होता है, मतलब हर बात सुन के ही आ जाता है कि ओके। तो और एक बात, लाइक आज जो है फादर्स डे की, उसके ऊपर सब लोग बोलते हैं लाइक बेस्ट पापा, बेस्ट मामा, और बहुत सारे मैं फेसबुक में देखती हूँ, इंस्टा में देखती हूँ, स्टेटस में देखती हूँ, सब जगह पूरा फोटोज, मतलब बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लगते हैं। तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे आप? या देखो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, वाइफ डे हो, कोई भी डे हो, अभी क्या है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, वो हमारे जिंदगी में चाची का रोल प्ले करती है। उस चाची को जब तक तुम बताओगे नहीं, तो समाज, सोसाइटी, आपके रिश्तेदार, खानदान मानेंगे नहीं कि ये लौंडा प्यार करता है अपनी माँ से या अपने बाप से, अपने, क्योंकि वो बताना पड़ता है। जो एक दो लोग के बीच के रिश्ते हैं, उसके रिश्ते का जो नजाकत है, उसमें जो भी खासियत है, वो हमको अपनी चाची सोशल नेटवर्किंग साइट को बताना पड़ता है। उसमें आते हैं फेसबुक की स्टोरी, फेसबुक का फीड, व्हाट्सएप का स्टेटस, सब जगह डालना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो लौंडा अपने बाप को बाप प्यार ही नहीं करता। और जनरली जैसे अभी दिसंबर में मेरी शादी हुई है, तो मुझे इन सब बातों का खासा ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से मैं वैलेंटाइन डे पे या फिर किसी टाइम में अपनी वाइफ के साथ फोटो डाल दिया, तो हमारे जो खानदान और परिवार में अपोजिशन वाले खुद को मान के बैठे हुए हैं, तो वो बैठे रहते हैं, बिकॉज उनको क्या था, पॉलिटिक्स में आने का शौक था, बट उतना दिमाग में उतना वो नहीं, तो पहुंच नहीं पाए, तो घर में ही पॉलिटिक्स करते हैं लोग। और भाई देखते रहते हैं कि अच्छा इस लौंडे की शादी हो गई है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार मम्मी का मदर्स डे पे ये डाला नहीं है, या फादर्स डे पे डाला नहीं है, अब चलो इस बात को मुद्दा बना के बड़ी सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और वो सभा होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड! तो ये एक तरीका है, हाँ, चाची है, मतलब दादी से वैसे वाला वे है। ओके, अच्छा। ये सब चीज दिखाना पड़ता है, और ये सब इंडिया में तो वैसे भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे यही है कि बेस्ट पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आया, बेस्ट पापा और बेस्ट मदर, मतलब ये आप कैसे तय कर सकते हैं, जब आपने अपनी, जैसे बोलते हैं माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि आपने माँ के हाथ के टेस्ट को एक्वायर किया है, और जिसको आपने एक्वायर किया है ना, उसको आप कभी बेस्ट नहीं बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो आई लव दैट टेस्ट, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, बट द बेस्ट, वो मेरे बेस्ट है, ये तो बचकानी हरकतें हैं। क्योंकि अगर सबके पापा बेस्ट है तो पूरी दुनिया बेस्ट है, तो फिर ये इतना बेकार चीज होगा से कैसे रहा है। ओके, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी हुई है आपकी वैसे रिसेंटली। ओके, सो एंजॉय कर रहे होंगे अभी लॉकडाउन बढ़िया से घर में। हाँ, तो मतलब ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाता है लाइफ में। तो लाइक शादी के बाद आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशन है आपके पापा के साथ, वो मतलब उसमें कितना चेंज आया है अभी? जी, जैसे डिपेंड करता है, हाँ ऐसा होता है, शादी के बाद काफी चीजें बदल दी जाती हैं लोगों के द्वारा, बट बदलता कुछ है नहीं। तो जैसे मेरा पापा का रिलेशनशिप हमेशा से ऐसा रहा है कि दो एक ऐसे दोस्त जो हमेशा एक दूसरे को क्रिटिकली एक्लेम करते रहते हैं कि भाई तेरे में ये गलती है, वो बोलते हैं मेरे में ये गलती है, तो हम लोग का शुरू से ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि पापा में अगर मुझे कुछ गलती दिखी है तो मैं सीधा बोलता हूँ कि हाँ पापा आप में ये गलती है, और पापा में दिखती है तो मुझे बोलते हैं। तो ये काफी दोस्ताना रिलेशन है, तो शादी के बाद भी फर्क नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं शादी के पहले आई वॉज लाइक कि मैं राशि बजाते के मूवी से बिलोंग कर रहा हूँ, अचानक शादी के बाद अनुराग कश्यप के मूवी के कैरेक्टर जैसा बिहेव करने लगा, ऐसा नहीं था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई एज मैं अनुराग कश्यप की फिल्म जैसा ही बिहेव करता हूँ, इसलिए शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं आई है।
ओके, बहुत अच्छा। मतलब वो जो पहले वाला रिलेशन है अभी भी वही वाला कंटिन्यू है, और बहुत बहुत जरूरी है एक्चुअली। हाँ मतलब उसमें वैसे ही मेंटेन करके रखने का। हाँ। और पापा के साथ वही है, बहुत सिंपल सी चीज होती है यार। फादर्स डे पे मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि देखो, माँ के साथ हम लोग इमोशन की अंताक्षरी खेलते हैं, बट पापा के साथ हम लोग इमोशन का डम सिराज खेलते हैं। इशारा उतना काफी होता है, बिकॉज दोनों मर्द हैं, और मर्द को ये सिखाया गया है हम लोग की सोसाइटी में कि बेटा इमोशन को बहाव मत, उसको अंदर रखो, नहीं तो लोग कमजोर समझेंगे। तो इसीलिए बाप बेटे का रिलेशन थोड़ा ऐसा ही रहता है। अच्छा, ओके, ठीक है। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी, लाइक इतना मतलब करियर में जैसे आप कॉमेडी शोज वगैरह करते हो, लाइक स्टार्टिंग में ऐसा था या बचपन से ऐसा था, या लाइक कुछ इंसिडेंट हुआ या कुछ चीजें ट्रिगर हुई तुम्हारे लाइफ में, लाइक जो लगा कि हाँ मैं मतलब कॉमेडी शो कर सकता हूँ या करूंगा, तो उस वे में आपने उसका करियर चुना? यार वैसा होता है कि जैसे हम लोग छोटे थे, बचपन थे अपन बिहार बी टाउन में, तो हम लोग फिल्म देखते हैं तो हम लोग को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अपने को हीरो बनना है, वो भी नहीं, अपने को गोविंदा बनना है। हाँ तो गोविंदा क्या, हीरो, हाँ तो वही बनना है। तो जब धीरे धीरे समझदारी आया तो ऐसा लगा कि यार ये फिल्म में कुछ चीजें जो होती थी, इंसिडेंट, मुझे लगता था कि ये इंसिडेंट ज्यादा बेटर होगा अगर इसमें ऐसे रहेगा। तो फिर किसी ने बोला बेटा तू राइटर बन सकता है। तो राइटर बनने के बाद फिर ड्रामा डायरेक्ट करने के बाद वाना भी एक्टर्स लोग के साथ शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद, और वो फिल्म हो जाती थी बेकार। तो फिर मुझे लगता था कि यार ये सब तो फालतू चीज हो गई, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसको मैं ही लेके स्टेज पे जाऊंगा, अगर बिगाड़ूंगा तो मैं ही, और उसको ठीक करूंगा तो मैं। तो स्टैंड अप पहले हम लोग के लिए था मिमिक्री, कि जो मिमिक्री कर सकता है वो स्टैंड अप कर सकता है। बट फिर मैंने विपुल गोयल, संजय राजौड़ा, ये सब का जब वीडियो देखा तो मुझे समझ में आ गया ये सब तो अपन भी करते हैं अपने माहौल बना के, पार्टी वार्टी में लौंडों के बीच में, है ना। तो ये चीज तो स्टेज पे भी किया जा सकता है, बस ऑडियंस को अपना दोस्त मान लेना होगा। बट हाँ, ये ऑडियंस को अपना दोस्त मानने का जो ये क्राफ्ट है ना, वो जो आपको कॉन्फिडेंस और वो जो प्रेजेंटेशन सीखना, दैट इज द क्राफ्ट विच आई एम लर्निंग डे बाय डे। और बस उसके बाद स्टैंड अप में आया, और स्टैंड अप में आके चीजें बहुत स्मूथ हो गई, क्योंकि समझ में आने लगा। बिकॉज दो टाइप के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो पहली बार स्टेज सामना करते हैं और परफॉर्म करते हैं। हम लोग क्या था, एक्सट्रोवर्ट थे, बस माइक नहीं होता था, बट अपनी आदत है ऐसे बोलते रहने की, बोलते रहेंगे, तो वही जाके स्टेज पे करने का माइक के साथ। तो वो, तो मतलब वो वाला जो दोस्तों के साथ होता था, वो एक प्लेटफॉर्म मिला उसको इन ए हाँ, प्रॉपर वे। वो है कि जो ऑडियंस है ये बहुत ज्यादा चूजी दोस्त हैं, मतलब ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये आपके जो कोई सुनने आया है, और उसके लिए आपको वही है, फिर स्टैंड अप के क्राफ्ट एंड वो सारी चीजें आती है। तो लेकिन हाँ, ये चीज समझ में आ गया था कॉलेज में आने के बाद से कि आई एम गुड इन क्रिएटिंग माहौल एंड ऑल। तो फिर ये लकली उसी समय चालू हो गया स्टैंड अप इंडिया में, इस टाइप का स्टैंड अप जो आप कैनवस हैबिटेट में देखते हो, तो शुरू कर दिया करना। मतलब वो एक कला है, वो कला लाइक आपको पता चल गया पहले से कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे, और आपने ट्राई किया ऑन गेटिंग बेटर डे बाय डे। हाँ, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए तो वो कला नहीं है, उनके लिए तो वो जिंदगी है। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो कला है। अच्छा, ओके, वो सीखना पड़ेगा फिर कर करके। हाँ हाँ, क्योंकि अब जैसे कोई पूछता है कि ये जोक्स और पंचेस में, जैसे बहुत लोग से आते हैं, बहुत लोग टिप्स लेने की कैसे जोक्स बनाए, पंचेस बनाए, मैं ऑनेस्टली नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा। नहीं पता। वो तो अंदर से आता है कि हाँ भाई इसको ऐसे बोल देंगे लोग हंस देंगे, बट वो क्यों है क्या है, वो तो अब कोई पूछता है तो प्रेशराइज होकर जवाब देना पड़ता है कि मैंने इस टाइप से जोक को सोचा, बट ऐसा कुछ सोचा नहीं, बन जाता है वो। मतलब एक बॉर्न टैलेंट है, लाइक वो आ जाता है अपने आप, कैसे बताना है वो नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं एक शो गई थी आपका देखने के लिए, बहुत बढ़िया था, लाइक फर्स्ट शो देखी थी। तो उसके हाँ बाद हम मिले थे, लाइक बातें किए थे, फिर पता चला कि हाँ साथ में लाइक हाँ, हम लोग पीकॉक कैफे सेम राइट, हाँ सेम कंपनी में काम करते हैं, या बहुत अच्छा था लाइक वो हाँ हाँ कॉमेडी शो। या हाँ। हाँ, तो लाइक हाँ कुछ बोल रहे थे कि इसके मैंने बोला ऊपर। टैलेंट तो, मतलब टैलेंट का ऐसा है कि आप वो चीज कर पा रहे हो। अब ये चीज तो देखो, आज से 20 या 200 साल पहले इसको तो सिंपल बकचोदी कहते थे कि भाई ये तो बस बात बनाता है आदमी। लेकिन जब धीरे धीरे ये कॉमर्शियलाइज मार्केट में आया और इससे लोग पैसा कमाने लगे, तो लोगों को पता चला ये टैलेंट है। तो टैलेंट तो क्या ही है, टैलेंट तो समय और सिचुएशन बताता है। अगर उस चीज से यू आर अर्निंग गुड और उस चीज का डिमांड है, तो लोग कहते हैं हाँ भाई बंदे में टैलेंट है। सपोज आज मैं बोलता हूँ कि मैं लहसुन बहुत अच्छा छील सकता हूँ, बस वही छील सकता हूँ और कुछ नहीं छील सकता हूँ, तो वो टैलेंट नहीं होगा। बट आज से 200 साल के बाद लहसुन छीलना एक आर्ट बन जाएगा, तब मेरा ये चीज टैलेंट कहलाएगा। ओके। तो हर इंसान में सब चीज होता है, बस वही है कि उसका टाइम और उसको उसकी पहचान हो।
करेक्ट, ठीक है। और एक बात, जैसे बोले कि जैसे ये एक आर्ट है कि कुछ टाइम के बाद वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा हाँ नाम लेगा। तो लाइक ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है, लाइक वैसे लाइक यू मतलब आपके पापा के साथ, जैसे मैं बता रही हूँ कि फादर्स डे है तो उसके ऊपर बात करना चाहूंगी मैं। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है कि पापा के साथ पहले आप सोचे होंगे कि हाँ ये मैं सही था, या मतलब फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं वो सही थे, या वो जो किए हैं वो सही था। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, शेयर करना चाहोगे हाँ, आप? जैसे कि वो सही गलत तो हमेशा डाउट में रहता है इंसान। जैसे मुझे ना मेडिकल करना था, बायो लेना था, बट मेरे पापा नहीं चाहते थे कि बायो ले। जो वो कहते थे नहीं, इंजीनियरिंग करो, सीधा जिंदगी स्मूथ रहेगी, क्या फालतू इतना टेंशन लेना है। लेकिन मुझे नहीं पापा, लेकिन पापा की बात में आके मैंने वैसे इंजीनियरिंग ले लिया। और पापा का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि अगर गलती से मेडिकल नहीं निकाले तो बाकी मेडिकल कॉलेज में डोनेशन से पढ़ाने की लेवल तो है नहीं अपने, ये तो लूटते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे लेते हैं। लेकिन अगर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग नहीं निकालता है तो एटलीस्ट 8-10 लाख देंगे तो बेचारे को इंजीनियरिंग करवा ही देंगे। तो ही वॉज क्वाइट रैशनल इन थिंकिंग, राइट, कि ऐसे जोश में नहीं आना है कि अपना लौंडा तो कर ही लेगा, वैसे वैसे ही फालतू बात है, ठीक है। तो उसके बाद तो लकी, चलो ठीक है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और जॉब वॉब करने लगा। लेकिन अब जब धीरे धीरे समझ में आती है चीजें कि हाँ पापा मुझे मेरे से बेहतर जानते थे, क्योंकि अगर अभी इंजीनियरिंग में हूँ और जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं ये सब करने का। लेकिन अगर मैं मेडिकल लाइन में चला जाता और वहां पे ऐसे डॉक्टर सर्जन बन के और मैं ऐसे कॉमेडी वॉमेडी करता रहता तो पता नहीं किसके पेट में कौन सा सूरज छूट जाता। तो आप मशीन के साथ यस, केयरलेस हो सकते हो, कंप्यूटर के साथ केयरलेस हो सकते हो, इंसान के साथ नहीं, है ना। तो पापा को पता था ये लड़का ठीक है, मशीन वशीन तक हाथ चलाए तभी ठीक है, इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट ना करे। तो इसलिए ये इंजीनियरिंग कर ले, उन्होंने राष्ट्र का भला किया, देश का भला किया और पेशेंट्स का भला किया। अच्छा, ओके। तो आपको बाद में पता चला कि आपका जो करियर है, आप जिस करियर में अभी जो कॉमेडी शो करते हो, तो ये फिट बैठता है, अभी हाँ ये इंजीनियरिंग सही किए चलता हो। है, साथ में सही चलता है। और बाकी तो वही बात है, पैसों से आंकने लगे तो इंडिया में 125 करोड़ में से 125 करोड़ में से 1-2 लाख हटा दो तो बाकी सब तो बेचारे गरीब ही है फिर, क्योंकि सब अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो वैसे सेंस में तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, बट हाँ अभी जो लाइफ है आई एम परफेक्टली ओके और सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। ये मेरा थॉट आया कि आप अगर मेडिकल में होते फील्ड में, तो हाँ डॉक्टर बनते, तो मे बी बहुत सारे लोगों को मतलब आपके कॉमेडी में हंसा सकते हो, तो वो लोग खुश हो जाते, क्योंकि मतलब वो लोग ठीक हो जाते ज्यादा, तो ये ज्यादा फिजिशियन होता इम्पैक्ट तो में मैं भी हाँ कर हटा सकते के कर देता। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपको ऐसे सोचनी पड़ती है जिससे आपके घर में आपके जो रिश्ते हैं वो स्ट्रांग हो, कि नहीं नहीं मेरे पापा ने सही किया था। तो ये सब जरूरी होता है कुछ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जो हो नहीं सकता उस पर क्यों सोचना है, जो हो गया है उसमें प्रोसेस ढूंढते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। नहीं, अभी सही है, अभी बहुत अच्छा है, मशीन के साथ आप काम करते हो और हम लोगों को इतना हंसाते रहते हो वैसे हम। तो जो भी चीजें हुआ है, जो भी डिसीजन लिए हैं, वो बहुत अच्छा था, मतलब ताकि हम मिले और जानने को मिला हाँ, इसके थ्रू। ऐसा बोलना पड़ता है जिंदगी में, जो चीज जी लो वो बहुत सही किए थे यार, ये सही किए थे, ये किए सही बोले। थे। अच्छा, ओके ओके। तो अभी और कुछ बोलना चाहोगे, लाइक आज मतलब सारे पापा जो है जो देख रहे हैं इस सेशन को, मतलब सारे पापा को, इस वर्ल्ड में सारे पापा को कुछ बोलना चाहोगे आज फादर्स डे में? या फादर्स डे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो पापा लोग के साथ एक, जिसको आज की सोसाइटी जनरेशन गैप का नाम देती है, या फिर कभी कभी होता है कि पापा के साथ आप बातचीत कर रहे हो, सही तरीके से आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या कभी पापा ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये जब भी इस टाइप का सिचुएशन होता है ना तो पापा लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि बेटे बेटे ने ऐसा बोल दिया, बेटे ने वैसा बोल दिया। तो ये सारे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि जब भी माँ बाप से लड़ाई होता है ना, और माँ बाप के साथ आप कभी भी ये हर परिवार में होता है, लोग छिपाते हैं, कभी आप ऊंची आवाज में बात कर दिए या फिर आपने सही बिहेव नहीं किया, उसके बाद बच्चे भी उतने ही गिल्ट में होते हैं जितना गुस्सा में उनके पेरेंट्स होते हैं। और वो गिल्ट का फ्रस्ट्रेशन होता है, ना कि माँ बाप पे फ्रस्ट्रेशन होता है। गलती से अगर मैंने माँ बाप को 2 शब्द बोल दिया तो उस चीज का जो गिल्ट का फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अंदर से खाता है। क्योंकि माँ बाप अगर समाज और सोसाइटी को बोलते हैं कि मेरा बच्चा नालायक हो गया है तो एवरीवन विल कम एंड गिव सिंपैथी, बट बच्चे के पास वो पावर नहीं है, वो नहीं बोल सकता है कहीं। माँ बाप भगवान होते हैं, आई एग्री, बट अगर भगवान ही है तो पूरी दुनिया भगवान है।
एक्चुअली माँ बाप भी इंसान होते हैं, गलती उनसे भी होती है, बच्चे भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती होती है। जरूरी है कि एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को मिलकर चीजों को सॉर्ट करना चाहिए। बस हाँ, उसमें एक मर्यादा का पालन करना चाहिए कि पिताजी या माता जी जैसे बोल रही है उनको थोड़ा सही तरीके से रिस्पॉन्ड करो। बट जब आप डेली रहते हो माँ बाप के साथ और आप कंटिन्यूस उनके साथ रह रहे हो, ऐसा नहीं कि आप दूर रह रहे हो और फोन पे आपने बात कर लिया है 10 मिनट के लिए, फिर पता है कि एक हफ्ते बाद बात करना है। जब आप डेली रह रहे हो तो चीजें डेली बेसिस पे हो रही है, तो उसमें हो सकता है कि कभी कभार आप अपना, बिकॉज यू आर गिविंग द कंप्लीट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर टू योर पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स आर गिविंग द कंप्लीट पर्सनैलिटी आपको, तो साथ रहने से वो बिग बॉस जैसा माहौल कभी कभी बनता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम अगर बच्चे कभी भी बदतमीजी करते हैं पिताजी के साथ, तो वो भी उतने ही गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं जितना पिताजी होते हैं, या फिर उससे ज्यादा ही रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा से बच्चों के नियत को समझिए और बच्चों को अपने माँ बाप के नियत को समझना चाहिए और चीजों को कन्वर्सेशन करना चाहिए, बातचीत ज्यादा करना चाहिए। बातचीत कम करने से ही दिक्कतें आती हैं। हर घर में लड़ाई होता है, हर घर में बहस होता है, हर घर में पापा को लगता है बेटा खराब है, हर घर में बेटा को लगता है पापा समझ नहीं रहे। ये सब चीज सिर्फ कन्वर्सेशन से ठीक की जा सकती है। चुप रह के, मुंह फुला के, मुंह घुमा के कभी कोई चीज ठीक नहीं होता। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोले अपने कि हमको ना जो भी इशू होता है कन्फ्रंट करना चाहिए वो इशू के ऊपर, ना करेक्ट। कि वो पर्सन के ऊपर। अगर इशू पे ऊपर करेंगे और बातें करेंगे ताकि सारी चीजें रिजॉल्व हो सकता है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लर्निंग सीखने को मिला आपसे। थैंक यू फॉर दैट। और एक क्वेश्चन आया है अभी यहाँ पे कि सिचुएशनल कॉमेडी एंड ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी में डिफरेंस क्या है? यार सिचुएशनल कॉमेडी और ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी में तो मतलब सिचुएशनल कॉमेडी कॉमिक तो आप ऐसे, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है ना, ये बहुत बड़ा रेंज है। ज्यादातर कॉमिक ये ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के सेक्शन को पकड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि आप किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व करते हो, कहीं भी कुछ घटना हो रही है, वो चीज आपको ऑब्जर्व की हो, जाहिर सी बात है आपकी मानसिकता कैसी है उस चीजों के प्रति। अगर अगर आप ऐसे हो कि लाइक आप देखो ना, एक ही सोसाइटी है, एक ही समाज है, और अनुराग कश्यप जब उस चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो बनाता है गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर वो अगली, राइट। और वही समाज वही सोसाइटी से जब राजकुमार हिरानी पकड़ता है तो वो बनाता है 3 इडियट। समझ रहे हो आप, सेम सोसाइटी है, बट हाउ यू ग्रैब द थिंग्स। सो फॉर द स्टैंड अप कॉमिक ही इज अ फनी, डेफिनेटली ही इज फनी, देन ही इज कमिंग इनटू द स्टैंड अप फील्ड। तो वो उस सोसाइटी से वो सारे फनी चीजों को ग्रैब करेगा और उसको वो प्रेजेंट करेगा लोगों के सामने। दैट इज अगेन द ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। और आप हर टाइप के कॉमेडी में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन कॉमेडी घुसी होती है। दिस इज आई थिंक एक ऐसा ये टाइप है ऑब्जर्वेशन कॉमेडी का कि हर कॉमेडी में ये आता है, because at the end of the time you have to observe certain things, grab the funny part and present it in the anecdote mode or any other topical mode, correct। और जो सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी इज द जॉनरा। लाइक अगर आप देखोगे कि बहुत सारी मूवी ऐसी होती है, लाइक अंदाज अपना अपना सिचुएशनल कॉमेडी था वो। या फिर आप इवन अगर आप डार्क कॉमेडी में देखोगे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वो सिचुएशनल कॉमेडी था। कैरेक्टर वाज नॉट डूइंग द कॉमेडी। अंदाज अपना अपना तो मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लो, वहां पे कैरेक्टर को फनी नहीं बनाया गया है, बट वो जिस सिचुएशन में है और वो जैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज द सिचुएशनल कॉमेडी, करेक्ट। तो स्टैंड अप के फील्ड में सिचुएशनल कॉमेडी तो मैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है वो ऐसा ही होगा कि व्हेन यू आर डूइंग क्राउड वर्क और आप किसी टाइप का सिचुएशन क्रिएट करते हो तो वहां पे सिचुएशनल कॉमेडी होगा। बट मुझे नहीं लगता स्टैंड अप में सिचुएशनल कॉमेडी नाम की कोई चीज होती होगी। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है, एनेक्डोट्स होती है, डार्क कॉमेडी होती है, यही सब होता है। अच्छा, ओके ओके। तो मे बी जयंत को उनको आंसर मिल गया होगा। बाकी और एक क्वेश्चन, अच्छा, प्रीति सेठी बोले हैं गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। या और एक आया है, रिक्वेस्ट आया है शीतला अंशु का, कैन वी हैव ए 5 मिनट स्टैंड अप कॉमेडी नाउ? अरे सेट ही सुन लोगे मेरा है फ्री में बोलो। यस, सुनना चाहेंगे। 5 मिनट कॉमेडी तो भाई लंबा सेट हो जाएगा। मैं एक एक एक, एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये मुझे ना, कितने लोग हैं जो, पल्लवी तुम देखती हो हॉरर हॉरर कॉमेडी शो देखती हो? कॉमेडी शो नहीं देखती हूँ, हॉरर मूवीज देखती हूँ। हॉरर देखती हो तो हॉलीवुड में हॉलीवुड देखती हो बॉलीवुड? हॉलीवुड बॉलीवुड मिक्स देखती हूँ। मैं हॉलीवुड देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हॉलीवुड की हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही भूत ना ऐसे दीवार पे चढ़ते हुए जा रहा है, गर्दन 360 डिग्री में घुमाता है और 3D इफेक्ट में वो अपना शक्ल बाहर निकलता है, तो उस समय ना मैं सबटाइटल पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा डर नहीं लगता, भूत का कट जाता है।
ओके। ये हो गया स्टार्टअप। ओके। अच्छा। और एक बात है, और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, लाइक अनेक्डोट एंड कॉल बैक अपने सेट में रहना जरूरी है क्या? अमेजन अभी प्राइम कॉमिक स्टैन का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? यार अमेजन प्राइम के कॉमिक्स था, हाँ ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा सारे बड़ी कॉमिक्स के लिए, कि हम लोग क्या है पुणे में स्टैंड अप हमने चालू किया था, और पुणे का स्टैंड अप सीन जब हमने चालू किया था यहाँ की ऑडियंस अवेयर नहीं थी स्टैंड अप के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते चले गए वो ऐसा सा हो गया कि लाइक आप सड़क पे खड़ा होकर वड़ा पाव बेच रहे हो, है ना, दो का तीन, दो का तीन, दो का तीन, साहब ले लो, साहब ले लो, साहब ले लो। और जब वहां पे गए तो पता चला एक दूसरे भी टाइप का सेल होता है जो कि मॉल में होता है, जब पब्लिक आती है, प्लीज बी सीटेड, डोंट पैनिक, व्हाट डू यू वांट सर, वाटर एंड समथिंग। तो क्योंकि पता है वहां पे लोग सुन रहे हैं। तो जब मैं गया था परफॉर्मेंस में अपने, तो मुझे पता था कि मुझे सिर्फ किल करना है, किल करना है, किल करना है, मुझे हर एक मिनट पे पंच डालना है, लगातार हंसा देना है। अपन गए हनुमान चालीसा जैसे गा के आ गए, जनता पागल हंस गई। बट बाद में समझ में आया कि भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब को पता है कि स्टैंड अप मीन्स ठहराव होनी चाहिए चीजों में। बट हमें तो आदत नहीं थी ना कि ऑडियंस बैठ के सुनता है। तो वहां पे तो इसीलिए कॉमिक्सतान में आप जब भी जाओ तो सबसे जरूरी है डिलीवरी पे काफी मेहनत करो, पंचेस तो होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप रिफाइन होके जाओगे उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि जो कॉल बैक की बात उन्होंने की है, कॉल बैक हाँ आजकल नया फैशन में है। कॉल बैक की लाइक आपने कोई जोक क्रैक किया अभी, और फिर आपने कंटिन्यू बाकी सारी बातें करते 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 लास्ट में फिर उस बात को वहीं पे डाला रिलेट करके, देन दैट इज कॉल बैक। बट अभी इनिशियली उस चीज को फोर्स होके कभी नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जोक क्वालिटी बिगड़ेगा। तो आपका जो नेचुरल स्टाइल है लिखने का, आप उसमें लिखते चले जाओ। और जब से जैसे आप धीरे चीजों को समझोगे तो आप ऑटोमेटिक कॉल बैक चीज को भी करने लगोगे। पहले से कॉल बैक को मत सोचो। जैसे बचपन में हम लोग जब कोई चीज सीखते हैं तो हम लोग को सिर्फ सिखाया जाता है कि बेटा ये शेड्स लो, कहीं भी रंग भर दो, कहीं भी भर दो, सोचो मत। लेकिन जब धीरे धीरे आप पेंटर सच में हो साबित हो जाएगा तो आप अपने आप ब्रश और पेंट पकड़ना और कलर्स को समझना शुरू कर दोगे। बचपन से ही अगर आप इस चीज पे ध्यान देने लगोगे मैं स्केच कैसे बनाऊंगा, तो आप फिर अपना जो एक नेचुरल स्टाइल है उसको डिस्कवर नहीं कर पाओगे। ये हो गया कॉल बैक। और दूसरा एक और था, कॉल बैक के साथ कुछ बोला था ना तुमने, एनेक्डोट। एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स इज लाइक कि जैसे स्कूल की कुछ बात है, कुछ कुछ इंसिडेंट है, पुरानी बात जो आपको याद है, वो आपको फनी वे में सुनाना है कि यार याद है क्लास में एक बार मैं ये किया करता था, ये तो दैट इज एनेक्डोट्स। ये सब नाम रखी गई है क्योंकि किसी भी चीज को जब कॉमर्शलाइज किया जाता है या फिर किसी चीज को आर्ट का नाम दिया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें बनाई जाती है ताकि लोगों को पढ़ाए जाने में हेल्प हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नेचुरल वे इतने तरीके से अच्छे से सीख लो कि बाद में जब आप सेट करोगे तो आपको कोई बताएगा कि अरे ये तो एनेक्डोट्स है, अरे ये तो तेरा ये है। तो दैट्स वाई आप जब आर्ट में घुसते हो तो पहले आप अपने नेचुरल वे को डिस्कवर करो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि भंसाली को भी पता नहीं था कि उसका वो जॉनरा होगा, राइट। किसी भी आर्टिस्ट को पता नहीं होता उसका क्या जॉनरा होता है, वो उसको उसकी ऑडियंस बताती है। क्योंकि आर्टिस्ट तो अपने लिए ऑनेस्ट है, वो वही दिखाना चाहता है जो वो दिल से चाहता है, ना कि वो ये कि जनता क्या चाहती है। नहीं तो फिर जनता क्या चाहती है वो अगर आप दिखाना चाहोगे तो फिर तो बना रहे हैं हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग फिल्म, तो वैसा बनाने का बनाना तो बना दो, क्या कर सकते हैं। ओके। तो सारे फील्ड में मतलब ट्राई आउट करना चाहिए कि तुम जो हो, बाद में वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस फील्ड में आते हो। हाँ, ओके। आप जो कर पा रहे हो आप वो करो, दिल से करो। आप क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द टाइम यू जस्ट वांट कि आप जो हो वो आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता सको उस माध्यम से जिस माध्यम का आपको विद्या मिला है, लाइक आर्ट। ओके, बहुत बढ़िया। और एक बात, और एक क्वेश्चन आया है, लाइक प्रीति का, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर जर्नी इन वन वर्ड? यार काफी अनप्रेडिक्टेबल। ये तो दो वर्ड हो गए। अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल, ओके। सही है। अ, और बाकी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट और एक बात मैं पूछना चाहूंगी, लास्ट क्वेश्चन, कि आपका क्या थॉट है, लाइक क्यों लाइक लोग योर ड्रीम टेल ज्वाइन करना चाहेंगे? लाइक एनीथिंग स्पेसिफिक और एनी पॉइंट यू वांट टू हाईलाइट? यार मैं इसलिए हाईलाइट करूँ क्योंकि आज जिस हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और अभी जो करंट सिचुएशन है, जितना डिप्रेशन में लोग रह रहे हैं, और हर घर बिग बॉस बनते जा रहा है क्योंकि आप कंटिन्यूअस साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को ज्यादा जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इतने डिप्रेशन वाले टाइम में आपको कोई चीज जिंदा रख सकती है तो वो है आपके ड्रीम्स।
और अगर आपके ड्रीम्स नहीं भी है तो आप अपने ड्रीम्स बनाइए, और अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो अपने साथ अपने बिलव्ड वंस के ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प कीजिए। तो ये dreamtrail.com अगर आप देखोगे, जितने भी मैं ऑडियंस है उनको मैं बताऊंगा कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके से आपको एक स्पार्क देता है कि लाइक बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम्स है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा बॉक्स ऑफिस पे हिट है या फिर जो बंदा स्टैंड अप कॉमेडी में करोड़ों लाखों पीट रहा है उसके ही ड्रीम्स होंगे, क्योंकि हमारे हेलो। जहन में एक चीज होती है। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? एम आई हेलो ऑडिबल? आकाश, बीच में कट रहा है। हेलो हेलो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हें पल्लवी। हेलो। हेलो। हेलो, आई कैन लिसन यू, मतलब हेलो। आवाज आ रही है मुझे। हाँ हाँ, यस आवाज यस, आ रही है? ऑडिबल अभी। आ रही है? हाँ हाँ, अभी क्लियर। तो मैं ये हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपना जो है, मतलब हम लोग के दिमाग में एक जहन में क्या है कि सपना जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप जो भी सपना जीते हो उस सपना को पूरा किस लेवल तक करते हो ये मैटर नहीं करता है। पूरा करते हो कि नहीं करते हो ये मैटर करता है। अभी अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो जरूरी नहीं है कि बैडमिंटन में नेशन ही या राष्ट्र लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने उसको क्रैक किया है। आपको अच्छा लगता है वो खेलना, आप खेलो। जहां तक जाओगे वो आपका मेहनत और आपका डेडिकेशन बताएगा, बट स्टिल यू लव दैट थिंग, राइट? तो ये dreamtail.com अगर आप फॉलो करते हो, इसमें जितने मैं देख रहा था उसके पेजेस को भी देख रहा था मैं, तो इससे आपको एक तरीके से स्पार्क मिलेगा कि हाँ, ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे। और उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ जीने का यही एक लास्ट मंत्र है कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। चाहे वो जिंदगी के एंड तक क्यों नहीं चले, बस फॉलो करते रहो। एंड फॉर दैट yourdreamtail.com बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और करते रहिए और ऐसे लोगों को मोटिवेट करते रहिए जैसे मुझे किया आज। थैंक यू। तो थैंक यू आपको कि ज्वाइन किए यहाँ पे योर ड्रीम टेल में, शेयर किए कुछ चीजें, लाइक अपना लाइफ का स्टोरी, कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स। और ये योर ड्रीम टेल .com, ये जो प्लेटफॉर्म है ये उसी के लिए ही है कि जो लोग चाहते हैं अपना ड्रीम्स फुलफिल करना है, कुछ लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, तो वो लोग पोस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जस्ट फॉलो योर पैशन और फॉलो योर ड्रीम। सो ये हमारा मतलब इस प्लेटफॉर्म का मिशन है, ये बोलना चाहूंगी। और इतना सारे चीजें बताने के लिए और यहाँ इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऐसे जुड़े रहेंगे हम आपसे। बिल्कुल। ओके, सो या, सो थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक्स पल्लवी, थैंक्स yourdreamtail.com। थैंक यू आकाश, बाय। चलिए।